میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بتائیں گے پاکستان ایران امریکہ جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان حکومت کے ساتھ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم حکومت کی تمام کاوشوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ خالد مقبول کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسی اور جتنی بھی جمہوریت ہے، ہم نے آئین کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ ہم اپنے حصے کا اختیار عوام کو دینا چاہتے ہیں اور صرف ایک جاگیردارانہ جماعت عوام کو اختیار دینے کی مخالفت کرتی ہے۔ مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اب تک جنگ کے بعد کے حالات میں پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے اور دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ۔ اور اب آپ کو بتائیں گے اسلام آباد نے فنکشنل لیگ کو سندھ میں فعال اور مضبوط بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے کئی بااثر سیاسی خاندانوں اور بڑے ناموں نے فنکشنل لیگ میں شمولیت پر آمادگی کی ظاہر کر دی ہے، جبکہ پارٹی قیادت خصوصاً پیر پگارا اور راشد شاہ راشدی نے ملاقاتوں اور سیاسی رابطوں میں تیزی لا دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل تمام ممکنہ امیدواروں اور شامل ہونے والی شخصیات کو مکمل اعتماد میں لیا جائے گا۔ اہم پیش رفت کے طور پر مختلف اضلاع سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ٹکٹوں کی ابتدائی تقسیم پر بھی کام جاری ہے، جبکہ سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور دیگر سیاسی شخصیات کو مختلف حلقوں میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق شامل ہونے والے رہنماؤں کی حتمی فہرست تیار کر کے پارٹی سربراہ پیر پگارا کو پیش کی جائے گی، جس کے بعد اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مشاورت کے ذریعے اس پر حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منظوری کے بعد مرحلہ وار اہم سیاسی شخصیات کی فنکشنل لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کیا جائے گا، جس سے سندھ کے سیاسی فضا میں بڑی تبدیلی بھی متوقع ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد نے فنکشنل لیگ کو سندھ میں فعال اور مضبوط بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کے کئی بااثر سیاسی خاندانوں اور بڑے ناموں نے فنکشنل لیگ میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی قیادت خصوصاً پیر پگارا اور راشد شاہ راشدی نے ملاقاتوں اور سیاسی رابطوں میں تیزی بھی لائی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل تمام ممکنہ امیدواروں اور شامل ہونے والی شخصیات کو مکمل اعتماد میں لیا جائے گا۔ اہم پیش رفت کے طور پر مختلف اضلاع سے قوم اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ٹکٹوں کی ابتدائی تقسیم بھی کام جاری ہے، جبکہ سابق ایم این ایز، ایم پی ایز اور دیگر سیاسی شخصیات کو مختلف حلقوں سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اور اب جانیے صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے ایم کیو ایم پاکستان کی حالیہ پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیانیہ سیاسی دیوالیے پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود سندھ حکومت کے خلاف حرز سرائی ان کے دوغلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ سید ذوالفقار علی شاہ کے مطابق آرٹیکل 140A اور بلدیاتی نظام کے نام پر کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی پرانی سازشوں کو دوبارہ ہوا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور ان کی جماعت عوام میں غیر مقبول ہو چکے ہیں اور سندھ کی دھرتی صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، جس کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مہم جوئی کرنے کے بجائے ایم کیو ایم کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید یہ بھی واضح کیا کہ کراچی کے عوام اب کھوکھلے نعروں اور لسانی سیاست کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں۔
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में इंडस्ट्रियल जोन्स की डेवलपमेंट से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नुमाइंदगान, सेक्रेटरी, लेबर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से अपने अपने इलाकों में मुजवज़ा स्कीम्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में साइड सुपर हाईवे की जानिब से 3 स्कीम्स के लिए 600 मिलियन रुपए की तजावीज़ पेश की गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर कहा कि कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स की बहाली और तरक्की अवली तरजीह है। काम को मजीद बेहतर और तेज करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फास्ट ट्रैक पर अमल दरामद किया जाएगा। ट्रेड और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को जल्द फंड्स की फराहमी शुरू कर दी जाएगी ताकि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हो सके। एसोसिएशन से दरख्वास्त है कि स्कीम्स के साथ तकमील की तारीख भी फराहम करें ताकि ताजरों और शहरियों को जल्द रिलीफ मिल सके। हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कराची को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। और अब आपको बताएंगे सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि ईंधन की मुमकिन कमी को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो भी फैसले करेगी, सिंध हुकूमत उन पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। एक बयान में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने अहम किफ़ायत और इकदाम करते हुए 3 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला किया, जबकि हफ्ते में 4 दिन दफातर खुले रखने और जुमे के रोज वर्क फ्राम होम की पॉलिसी अपनाने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर तरह सतह पर हिमायत जारी रखेगी और अवामी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल से बचना जरूरी है जहाँ ईंधन और तवानाई की किल्लत पैदा हो। शर्जील इनाम मेमन ने यह भी बताया कि सिंध हुकूमत ने 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने का फैसला किया है ताकि ईंधन की बचत को यकीनी बनाया जा सके, जबकि महंगाई पर काबू पाने के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुमकिन हो तो घरों से काम करें ताकि ईंधन की बचत में मदद मिल सके, क्योंकि ये एक इज्तिमाई मसला है जिससे निपटने के लिए सबका ताउन बहुत जरूरी है। MQM के रहनुमाओं ने 28वीं आईनी तरमीम फौरी तौर पर लाने और आर्टिकल 140A को मौसर बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क में बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। MQM की क़यादत ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खित्ते की बदलती सूरत हाल, आईनी तरमीम और मुल्की सियासी और माशी चैलेंजेस पर तफसीली मौक़िफ़ पेश करते हुए फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, MQM उसकी हिमायत करती है, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से इंतहाई फाल किरदार अदा किया। अब तक जंग के बाद के हालात में पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा फाल किरदार अदा किया है, लेकिन इस जंग के हवाले से अब तक कोई ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहा है कि आने वाले दिनों में, महीनों और सालों में इस खित्ते की सूरत हाल कैसी रहेगी, क्या डेवलपमेंट होगी और उसमें खुद पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है और मुमकिना तौर पे पाकिस्तान को किन हालात का सामना हो सकता है। पाकिस्तान सालसी और मज़ाकरात के जिस अज़्म का इजहार कर रहा है, हम उसके साथ हैं। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम को मुल्की बका के लिए नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का इन्हिसार कराची की मजबूती पर है। उन्होंने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया और सियासी मुखालिफिन को रवैया तब्दील करने की आखिरी वार्निंग देते हुए कौमी मफाद में बर्दाश्त और कुशादगी अपनाने पर जोर दिया। बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाया गया, मौसर बनाया गया, बावसीला बनाया गया। 3 ऐसे अदवार हैं जिनमें ऐसा हुआ, तो उन्हीं अदवार में मुल्क की कौमी मईशत की तरक्की की शरह नमू या हमारी इकॉनमी की ग्रोथ रेट 6% थी, 7% थी और 8% थी। ये जो जागीरदाराना जमहूरियत है,
इनके जितने भी अदवार गुजरे हैं उनमें तरक्की की शरह नमू 2%, 3%, 4% या माइनस में चली गई है। मेरे ख्याल में जो आज हमने इसरार किया या जो एक ज़ोर दिया वो इसी बात पे, और इसी मुनासबत से जो कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान है उस पर अगर अमल दरामद नहीं हुआ है तो उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम अब कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। मौजूदा निज़ाम में इख्तियारात सिर्फ 4 वज़राए आला के पास है, जबकि पाकिस्तान के 400 शहरों को इस ढांचे के तहत मौसर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान का आज जो निज़ाम है वो 4 वज़राए आला के पास है, 4 वज़ीर आला जो 4 शहरों में बैठे हैं। पंजाब का वज़ीर आला की वज़ीर आला लाहौर में बैठी, सिंध का वज़ीर आला कराची में बैठा है, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में और बलूचिस्तान का कोयटा में। पाकिस्तान में 400 शहर हैं। जब कोई हालात होते हैं, जब जंग होती है तो आपको आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंटैक्ट है। जब हम ये कह रहे हैं कि अब ये हमारी डिमांड नहीं है, ये तो आज के हालात से बहुत पहले हमने ये बात की ना, लेकिन आज ये इस मुल्क की मजबूरी है। हम ये बताना चाह रहे हैं आज ये हमारी डिमांड नहीं है, अब आइंदा की तैयारी के लिए इस मुल्क की मजबूरी है। रहनुमाओं का कहना है कि आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। एक जानिब तरक्याती काम मुकम्मल करने का दावा, लेकिन दूसरी तरफ इफ्तिताह से कबल ही करीमाबाद अंडरपास की सर्विस लाइन टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने चैनल 5 न्यूज़ से बात करते हुए इदारों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। शहरी कहते हैं कि इफ्तिताह की तारीख का ऐलान 3 से ज़ायद दफ़ा किया गया, लेकिन अब तक अंडरपास तो क्या उसके अतराफ की सड़कों को भी मुकम्मल नहीं किया गया। जो काम किया गया वो इतना नाक़िस है कि उनकी सड़कों का ना होना ही बेहतर है। शहरियों ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। और हमारे हालत पे भी ये रोड बना हुआ है, ये रोड के ऊपर थोड़े मसले मसाइल हैं, बाकी गवर्नमेंट कर रही है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। वो भी फिर जल्द से जल्द काम तो जारी हो रहा है। 3 साल का प्रोजेक्ट था, बाकी 5 साल लगा दिए इन्होंने। वक्त के हिसाब से तरक्याती काम हो रहा है। अब इसके अंदर जो है पहली बारिश के अंदर कोई आइडिया नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। परेशानी तो आती है, उसके बाद सुकून और राहत भी होती है। हर एक को अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, किसी और से नहीं होती। जब तक कि कोई भी काम, चाहे अपने घर की छत, तो पहली बारिश के बाद ही पता चलता है कि आया कि बारिश कहाँ से घर छत टपक रही है, कहाँ से नहीं छत टपक रही। बहुत सारा है यहाँ पर जो है ना, काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 2-3 साल से तो हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ कोई वो नहीं कर रहे हैं मतलब। और गवर्नमेंट जो है ना, इनको चाहिए कि तेज़ी से तेज़ी काम करना चाहिए। ये नया अंडर पास के लिए जितना रोड बना था सारा, ये सारा बैठ गया। लेकिन इस गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे मेयर साहब हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें। और अहम खबर देंगे। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात कराची आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा है कि करीमाबाद अंडरपास 10 अप्रैल से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास पर दिन रात काम चल रहा है। करीमाबाद अंडरपास की लंबाई 1.1 किलोमीटर है। अंडरपास का तामीराती काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था। अंडरपास को 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल होता था। इस मंसूबे की इब्तिदाई लागत तकरीबन 1 अरब 35 करोड़ थी, लेकिन दौरान तामीर करीमाबाद अंडरपास की लागत तकरीबन 3 अरब 83 करोड़ रुपए हो गई। कराची में इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली की तैयारी के लिए हुकूमत सिंध ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर काम का बाकायदा आगाज कर दिया है। सिंध सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के तहत 2 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज हो गया। वर्कशॉप में गुफ्तगू में उनका कहना था कि सेक्रेटरी दाखिला सिंध इकबाल मेमन ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद सूबे में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जामी और मौसर हिकमत अमली तैयार करना है। वर्कशॉप में सेक्रेटरी दाखिला सिंध महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के आला अफसरान, एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लारिक और SSP CTD ऑपरेशन इरफान बहादुर समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। वर्कशॉप में इस बात पर जोर
زور دیا گیا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ ورکشاپ میں معاشرے میں رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والے پرتشدد بیانیے کی روک تھام کے لیے جدید اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن بلدیاتی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ کراچی سوراب گوٹ ٹاؤن کی یوسی 8 فقیرہ گوٹ اور بشیر پٹی میں سیوریج کا سنگین مسئلہ برقرار ہے، جس کے باعث مکینوں اور کاروباری افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دوران ٹاؤن اور یوسی چیئرمین نے مسائل کے حل کے وعدے کیے تھے، تاہم تاحال کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر بلدیات سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور خبردار کیا کہ اگر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ ہم پھر روڈ وغیرہ بنا کے دے دیں گے، اور یہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تقریباً 15-20 سال ہو رہے ہیں ہمارے یہاں۔ پہلے ادھر تحریک انصاف والے تھے، پیپل پارٹی والے، ان کے والے سارے آتے ووٹ لے کے جاتے، روڈ گڈر لائن سیوریج کچھ سب کچھ بولتے کر کے جائیں گے، صرف جھنڈے لگا دیتے، باقی کسی کام کے نہیں ہے۔ تقریباً 12-13 سال سے یہ مسئلہ ہے۔ تقریباً یہ پانی اس طرف سے بھی نکل رہا ہے اور اس طرف سے بھی نکل رہا ہے۔ سامنے مسجد ہے، آنے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ یہاں بچے جو ہے نا کافی بچے یہ نیچے کٹ رہے ہیں۔ اس دن موٹر سائیکل جا رہا تھا گڈر کے نیچے، اگر آپ دکھا دو گے تو اس دن موٹر سائیکل بھی اس کے اندر گر گیا تھا۔ تو 12-13 سال سے یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کو تقریباً 2-3 بار بلایا، وہ بھی آئے یہاں پر، ان لوگوں نے وزٹ کیا ہے، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ بھی آئے تھے، فاروق چودھری زمان جو ہے وہ بھی آئے تھے، اور اللہ رحیم کو بھی اس کی ویڈیو تو ہم لوگوں نے بھیجی ہے، گروپ میں بھی ہم لوگوں نے شیئر کیا، لیکن ابھی تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ہم کیسے کریں؟ ہم بیمار تو ہوتے ہیں، پر کیا کریں ہم لوگ ادھر گندگی میں رہ رہے ہیں ہم لوگ، کچھ بولے تو پھر کیا کہیں، گزارا پھر ہو ہی نہیں رہا۔ مچھر بھی بہت ہوتے ہیں، رات کو بجلی بھی چلی جاتی ہے کبھی، اس میں ہم لوگ گر جاتے ہیں۔ 10 سال سے بندے، ہم کیا کریں؟ ابھی ایک دفعہ ہم نے بولا بھی تھا۔ اور عید کے 4 روزہ تعطیلات ختم ہونے کے باوجود شہر کراچی میں ٹریفک معمول سے کم دکھائی دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں فتح اللہ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سمیت پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی نمایاں کمی نظر آ رہی ہے، جس کے اثرات براہ راست ٹرانسپورٹ سیکٹر پر بھی پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کرایہ میں اضافے کیے جانے کا امکانات بھی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا تو شروع ہو گئی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کی کمی اور مہنگائی اور ان کے روزمرہ سفر کو ایک چیلنج بنا دیا ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے عوام کا، کیونکہ آج پیٹرول بہت مہنگا ہے اور اس کی وجہ سے اضافہ کیا ہوگا، کرائے بہت زیادہ ہے۔ غریب آدمی اتنا کماتا نہیں ہے پہلی بات تو مطلب پھر وہ پیٹرول ڈلوائے گا یا کھائے گا؟ ایک بندے کی 1000 روپیہ دیہڑی ہے، 400 روپے کا پیٹرول ڈلوائے گا تو کھائے گا 600 روپے میں کیا؟ اس کے 4 بچے ہوں گے، وہ کیا کھائے گا؟ ٹریفک تو اس لیے نہیں ہے کہ پیٹرول انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، دوسرے ایک تو پھر عوام کے اوپر لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگ اپنے مزدوروں کے لیے نکل رہے ہیں تو وہ بھی نہ نکل سکیں۔ لاک ڈاؤن سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پیٹرول کو بیک کر دیں، یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں تو پیٹرول کو آپ بیک کریں، حالانکہ پیٹرول تو بہت ہے ہمارے ملک میں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اسی طرح جاری رہا تو اس کے اثرات نہ صرف ٹرانسپورٹ بلکہ مہنگائی اور شہریوں کی زندگی کے دیگر شعبوں پر بھی مزید بڑھے گا۔ 4 روزہ تعطیلات کے بعد اس وقت کراچی میں ٹریفک معمول سے کم ہے۔ پیٹرول میں اضافے کے بعد لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی نمایاں کمی ہے۔ دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت اگر مزید پیٹرول بڑھاتی ہے تو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دے کر عوام کے لیے سہولت پیدا کرے۔ کیمرامین محمد بیزاد کے ساتھ فتح اللہ، 5 نیوز کراچی۔ اہم خبر کے حوالے سے بتائیں گے، کراچی میں ادارہ ترقیات کراچی کے نام پر بھتہ خوری کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، جس کے بعد ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے آصف جان صدیقی نے سخت اور دو ٹوک موقف اختیار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر کے مختلف اضلاع خصوصاً ضلع وسطی اور ضلع شرقی میں زیر تعمیر مکانات کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، جہاں کچھ عناصر خود کو کے ٹی اے سے منسلک ظاہر کر کے شہریوں سے بھاری رقوم بٹورتے تھے۔ معاملہ اس وقت سنگین ہوا جب یہ انکشاف سامنے آیا کہ یہ عناصر کے ٹی اے کے نام اور ڈائریکٹر جنرل کے نام کا سہارا لے کر جعلی نوٹسز جاری کر رہے تھے۔
DGKDA ने फौरी एक्शन लेते हुए अवाम और इदारे के मुलाजमीन को खबरदार किया कि इस घिनौने खेल में मुलव्वस अफराद दरअसल प्राइवेट लोग, साबका पेरोल पर मौजूद रिटायर्ड या फिर बरतरफ मुलाजमीन हैं जो शहरियों को हिरासा करके पैसे बटोरते हैं। इंकशाफ हुआ कि ये गिरोह ज़ेर तामीर मकानात के मालिकान से नक्शों की फॉर्जिंग और दीगर दस्तावेजात तलब करते हैं, फिर उनमें जानबूझकर नकाइस निकाल करके खौफ और हिरास फैलाते हैं और रिश्वत का मुतालबा भी करते हैं। मजीद ये भी कहा कि प्राइवेट फर्द के जरिए सादा कागज पर नाम और मोबाइल नंबर लिखकर राबते में कहा जाता है कि जो खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी अमल है। KGA आसिफ जान सिद्दीकी ने वाज़ेह ऐलान में कहा है कि ऐसे अनासर के खिलाफ इदारा खुद मुद्दई बनकर कार्रवाई करेगा, FIA दर्ज करवाई जाएगी और सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अवाम को हिदायत जारी की गई है कि किसी भी मशकूक नोटिस या फिर मुतालबे की सूरत में फौरी तौर पर KGA से कंप्लेंट सेल से राबता करें और बगैर डायरेक्टर लैंड के दस्तखत और मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के किसी भी कोई दस्तावेजात या फिर रकम हरगिज ना दें। DGKDA ने यह भी इंदिया दिया है कि बहुत जल्द इन अनासर के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो ऐसे माफिया को बेनकाब करने में इदारे का साथ दें। इंकशाफात शहर में जारी एक मुनज़्ज़म भत्ताखोरी नेटवर्क की निशानदही करते हैं, जिसके खिलाफ अब सख्त क्रैकडाउन का आगाज होने जा रहा है। खबर देंगे टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही की ज़ेर सदारत एक नहायत अहम और जामे इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमकिन बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी के मौसर इंतजाम और जारी और मुजावजा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक, डायरेक्टर सैनिटेशन लियाकत यूसुफ, डायरेक्टर प्रॉपर्टी टैक्स असद सिद्दीकी जमील समेत दीगर मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान तमाम महकमों के अफसरान ने अपनी अपनी कारकर्दगी, जारी तरक्याती स्कीमों और बिलखुसूस रेन एमरजेंसी के हवाले से किए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग थी। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने ब्रीफिंग का बगौर जायजा लेते हुए मुताल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि मुतवक्के बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अमला हम वक्त अलर्ट और मुतहरिक रहे, जबकि निकासियात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल और मौसर बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने डायरेक्टर सैनिटेशन को खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि नालों, नालियों और गटरों की सफाई का अमल हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और उनके तमाम मुकामात की फौरी निशानदेही भी की जाए जहाँ बारिश के दौरान पानी जमा होने का खदशा हो। मजीद बना हैवी मशीनरी, डी वाटरिंग पंप्स की बरवक्त दस्तियाबी और फालियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया ताकि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। चेयरमैन ने तरक्याती मनसूबों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि इलाके में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना हर सूरत यकीनी बनाया जाए और काम के मेयार पर किसी भी किस्म का समझौता न किया जाए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में सूबे भर में जारी स्कूल्स की तामीर और बहाली मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, चीफ प्रोग्राम मैनेजर RSU डॉक्टर जुनेद समू, DG प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च अब्दुल कदीर अंसारी और दीगर अफसरान की शिरकत की। इजलास में वज़ीर तालीम सिंध ने सैलाब मुतासरा स्कूल्स की बहाली के लिए काम में तेजी लाने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर तालीम ने तरक्याती स्कीम्स की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ज्यादा तवज्जो सैलाब मुतासरा स्कूल्स पर दी जाए ताकि तालीमी सरगर्मियों को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। फंड्स को बर वक्त शफाफ और मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। स्कूल्स की मेयारी तामीरात पर किसी भी किस्म का समझौता न किया जाए। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के साथ माहौल दोस्त भी बनाया जाए। तालीमी सहूलियात की बेहतरी को हुकूमत की अवली तरजीह है। तलबा और तालिबात को बेहतर तालीमी माहौल की फराहमी के अज़्म को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। वेलकम बैक। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ट्रेडिंग का अमल जारी है। इदारे की जानिब से 5 तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिस पर 50 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर्स जमा करवा दिए हैं, जिससे मंसूबों में गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर होती है। हुकाम के मुताबिक टेंडरिंग के अमल को शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाने के लिए ई-पैड सिस्टम के जरिए कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। ज़राए लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सेपरा ई-पेड पॉलिसी के तहत सिर्फ वही ठेकेदार काम हासिल कर सकेंगे जो मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरेंगे और तकनीकी और माली जांच में कामयाब हो सकेंगे। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अहकामात पर ई-पेड निज़ाम नाफिज किया गया है ताकि सरकारी मंसूबों में शफाफियत, एहतसाब और मुनसिफाना मुकाबले को यकीनी बनाया जा सके।
मौसम के हवाले से अहवाल शामिल करते हुए बताया महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद लियारी टाउन के इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनटी खान के ज़ेर सदरत हंगामी इजलास का इनकाद हुआ है, जिसमें तमाम म्यूनसिपल अफसरान को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एनटी खान ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फील्ड में रहकर आवाम को रिलीफ फराहम करें। नालों की सफाई, सीवरेज लाइनों की फौरी तौर पर क्लियरेंस की जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डी वाटरिंग पंप्स को चोकिंग पॉइंट्स पर लगाया जाए ताकि बरसात के फौरी बाद निकासी आब का काम मुकम्मल किया जा सके। मैं खुद फील्ड में रहकर आवाम को रिलीफ फराहम करने के इकदाम का जायजा लूंगा। रेन इमरजेंसी के पेश नज़र अफसरान और मुलाजमीन की ताहुक्म सानी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। किसी भी अफसर की जानिब से कोई कोताही सामने आई तो फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरसात के दौरान अफसरान और अमले की शिफ्टों में काम करेगा ताकि आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। टाउन की बेहतरी के लिए वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन भी टाउन इंतजामिया के साथ फील्ड में मौजूद रहेगा। और अब आपको बताएंगे पीडीएमए की जानिब से बारिशों के तीसरे स्पेल की इतला मिलते ही माड़ीपुर टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान की हिदायत की रोशनी में तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान और अरकान कौंसिल के साथ एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें आने वाले बारिशों के तीसरे स्पेल के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। इस मीटिंग में जहां बारिशों के खतरात से अहलियान माड़ीपुर टाउन को मुकम्मल रिलीफ और हिफाजत फराहम करने की अज़म किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ दीगर कई किए जाने वाले इकदाम को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने की हिकमत अमली भी तय की गई। लिहाजा इस पर अमल दरामद करने के लिए तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान को म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर की जानिब से मुख्तलिफ हिदायत जारी की गई हैं और उन पर सख्ती से अमल करने का भी हुक्म दिया गया है, जिसमें खुसूसी तौर पर डायरेक्टर एडवाइजर को फौरी तौर पर ऐसे बिल बोर्ड जो आवाम के लिए ऐसे मौके पर खतरे की अलामत हो सकते हैं हटाने के साथ साथ एक्शन भी एन को फौरी तौर पर तमाम यूसीओ में डी वाटरिंग पंप की फराहमी और नशेबी इलाकों में खुसूसी तौर पर इजाफी डी वाटरिंग पंप को यकीनी बनाने की हिदायत। मजीद डायरेक्टर सैनिटेशन को सफाई सुथराई और चोकिंग पॉइंट कबल अज वक्त क्लियर कराने और अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाने के अहकामात जारी किए गए हैं। ख्याल रहे कि म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा है कि हमने टाउन में इमरजेंसी सेंटर कायम किया हुआ है, इसके लिए आवाम को 24 घंटे फाल रखा जाएगा। आखिर में उन्होंने वहाँ पर मौजूद तमाम अफसरान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपने जिस तरह मेहनत और लगन से बारिशों और ईद के दौरान अपने कामों को सरअंजाम दिया है वो बाइस खुशी है और मुझे फख्र है कि मुझे एक मेहनत कश टीम मिली है जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझती है। इस मौके पर डायरेक्टर सैनिटेशन ने सुल्तानाबाद अमीर अमेरिकन इमरजेंसी के पास जो बड़ा चोकिंग पॉइंट जो टेक्निकल मसाइल की वजह से बंद था इसको क्लियर करने की रिपोर्ट में आगाह किया है, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदरत उनके दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में 28 मार्च को एक्सपो में होने वाले आलमी मुशायरे के इंतजामात का जायजा लिया गया। फैसला किया गया कि इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। इजलास में DEG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, एडिशनल कमिश्नर गुलाम मेहदी शाह, एडिशनल कमिश्नर असदुल्ला खोसो, डिप्टी 2 कमिश्नर शर्की नसरुल्लाह अब्बासी, MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी और मुख्तलिफ शहरी इदारों के और साकिनान शहर कायद के अहदेदारों ने शिरकत की। मुशायरे के मुंतज़िम आला महमूद अहमद खान ने इजलास को मुशायरे के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मुशायरे में मुल्क और बैरून मुल्क के मुमताज़ शारा और शिरकत कर रहे हैं। कमिश्नर ने यह भी कहा कि आलमी मुशायरा एक अच्छी रिवायत है, इससे मुल्क और बैरून मुल्क कराची का मुस्बत चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में मुशायरों के इनेकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कमिश्नर ने ये वाज़ेह किया कि कराची इंतजामिया आलमी मुशायरे की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। मुंतज़िम आला महमूद अहमद खान ने इजलास को मुशायरे की अहमियत, तारीख और मुल्की और गैर मुल्की मुतवक्के शायरियों की तफसीलात से भी आगाह किया। और खबर शामिल करें और बताएं एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के 21 रुकनी वफ़द ने काटी के सदर मोहम्मद अकरम राजपूत की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वफ़द ने एडिशनल IG कराची को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल, सनती इलाकों की सिक्योरिटी और स्ट्रीट क्राइम के तदारिक से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने शहर में क़याम अमन के लिए कराची पुलिस के इक़दामात को सराहते हुए
बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के दौरान पुलिस की कारकर्दगी को मिसाली करार दिया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए बाहिमी रवाबित को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इख्तिताम में पुलिस चीफ और वफ्द के दरमियान शील्ड और तहाइफ का तबादला भी किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर ने कराची में कल हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी है। अपने वीडियो बयान में उनका ये कहना था कि आंधी और तेज़ हवाएं भी मुतवक्के हैं। अवाम बारिशों के दौरान बर्क़ी आलात से दूर रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट रेन नहीं हुई और इसी तरह कल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग और दोपहर में हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। इसके साथ साथ जो है ना आंधी आना, तेज़ हवाओं का चलना, ये इन बारिशों में मतलब फिनोमेना ज़रूर होता है। तो इसीलिए शहरियों को एहतियात करनी चाहिए। जो क्योंकि आजकल सोलर पैनल्स लगे होते हैं जगह जगह पर, बिलबोर्ड लगे होते हैं, उनके गिरने का ख़तरा होता है। तो जो भी वीक कंस्ट्रक्शन है उनसे दूर रहें और मोस्टली जो कवर्ड एरियाज़ हैं ड्यूरिंग द आंधी और तेज़ हवाओं के, उनमें यानी घरों में रहें तो ये बेहतर रहेगा ताकि नुकसान कम से कम हो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए कि आज हमें एक्सपेक्टेड था कि लाइट रेन होगी। और बात करेंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले वाक़यात और हादसात ने एक बार फिर शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात खड़े कर दिए हैं। रेस्क्यू इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ज़ख्मी जबकि 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरंगी नासिर जंप लखनऊ सोसाइटी के करीब फायरिंग के वाक़े में 35 साला कामरान जख्मी हुआ जिसे फौरी तौर पर जुना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लानी उनासी कंपनी में काम के दौरान सर पर वजनी चीज़ गिरने से 20 साला मजदूर कादिर जाबहक हो गया जिसकी लाश भी जुना अस्पताल मुंतकिल की गई है। इसी तरह कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 35 साला तलहा मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि जहांगीर रोड नंबर 1 पर हॉल के करीब हादसे में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 6 साला बच्चा हसनैन जाँ बहक हो गया जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये वाक़यात शहर में सड़कों की हिफाजत, ट्रैफिक नज़्म व नस्क़ और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश को बढ़ा रहे हैं। कराची पुलिस ने आइंदा हफ्ते से गैर मंजूर शुदा नंबर प्लेट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान कराची पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की हिदायत पर अवाम उन्नास को आगाह किया गया है कि वो अपनी गाड़ियों पर हुकूमत की मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स लाजमी तौर पर नस्ब करें। बयान में यह भी कहा गया कि प्राइवेट, फैंसी या फिर गैर मंजूर शुदा नंबर प्लेट से इस्तेमाल कानूनन ममनू है जिससे न सिर्फ शनाख्त में मुश्किलात पेश आती हैं बल्कि सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ जाते हैं। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक 30 मार्च से बाकायदा क्रैकडाउन मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के दौरान प्राइवेट या फिर फैंसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई हुई है। 20 मिलियन रुपए के माली फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए कस्टमर की चेक का गलत इस्तेमाल किया है। अपडेट करें इस खबर के हवाले से कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 मिलियन रुपए की माली फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए कस्टमर के चेक का गलत इस्तेमाल किया गया है। अपडेट करें कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई, 20 मिलियन रुपए की माली फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए कस्टमर के चेक का गलत इस्तेमाल किया गया है। अपडेट करें कराची में FIA की बड़ी कार्रवाई, 20 मिलियन रुपए की माली फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए कस्टमर के चेक का गलत इस्तेमाल किया। इस हवाले से मजीद अपडेट जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शाइस्ता ज़ैदी से। जी शाइस्ता, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए 20 मिलियन रुपए की माली फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुलजिम मोहम्मद नदीम जो कि एक बैंकर है उसको गिरफ्तार कर लिया।
तर्जुमान SIA के मुताबिक मुलजिम ने धोखाधड़ी के जरिए कस्टमर के चेक का गलत इस्तेमाल किया। मुतासरा शहरी ने चेक जो है वो TDR के लिए जारी किया था। ताहम मुलजिम ने जो है चेक को असल मकसद के बजाय पे ऑर्डर बनाने के इस्तेमाल किया। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने इसी तरीके से 20 मिलियन रुपए की रकम फ्रॉड के जरिए निकलवाई, जिससे कस्टमर को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। SIO काम का कहना है कि टीम ने बर वक्त मजबूत कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है और मजीद इंकशाफात भी सामने आने की तवक्को है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शाइस्ता ज़ैदी। बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत अलर्ट है। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और इनखला की हिदायत कर दी गई है। मुमकिन है बारिशों के पेश नज़र सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मुजम्मिल हुसैन को हिदायत दी है कि खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों की फौरी निशानदही और निगरानी को यकीनी बनाया जाए, जबकि ऐसी इमारतों के मकीनों को फौरी इनखला का भी हुक्म दे दिया गया है। जबकि नासिर हुसैन शाह ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी हिफाजत के पेश नज़र बोसीदा और नाकाबिल रिहायश इमारतों को फौरी खाली करें और बारिश के दौरान कमज़ोर दीवारों और ज़ेर तामीर इमारतों के करीब जाने से भी गुरेज करें, क्योंकि ये जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। उन्होंने हिदायत दी है कि रेन इमरजेंसी सेंटर में 24 घंटे अमला मौजूद रहे और तमाम मुतल्लिका अफसरान बारिशों के दौरान मुकम्मल अलर्ट रहते हुए फौरी कार्रवाई यकीनी बनाएं। सूबाई वजीर ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।